Hello and welcome friends to our channel Knowledge Track. In today's video, we are going to cover up financial statements. And these financial statements are really relevant and they play a very important role when it comes to fundamental analysis. तो इसलिए दोस्तों fundamental analysis को समझने से पहले we need to understand the financial statements very clearly. एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए उस कंपनी की हेल्थ के बारे में. And let me tell you this with the help of a pictorial. So we have a small story here, and before that, let me ask you this question. जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, for example, if you have invested somewhere, are you fully aware of your stock investments? Let me ask you this question first. और इस तरह की कुछ conversation is going on between these two guys. This guy says, I invested some stocks last year, but my investments have not grown enough. Actually, some of them have turned out to be huge losses. This is a very general kind of conversation going on. इन भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ स्टॉक्स के अंदर. पिछले साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो नहीं की, इन्होंने कुछ लॉसेस जो हैं वो बुक किए. Now, the second guy who is a kind of bit intelligent or who may know about the stock markets a bit, so he's asking, how did you do the stock selection? कि आपने stock selection कैसे किया? And the answer is, I was tipped by some broker after losses. He stopped picking up my calls. इन भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट कैसे किया था? एक ब्रोकर के टिप पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था. And this is what happens, friend. कि आज के दौर में क्या हो रहा है कि what is happening is people don't want to invest time, and when you are not investing time you will keep on searching for tips. और टिप्स के बेसिस पे जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, that is not an investment, it's a kind of gamble. So you need to make yourself fully aware, fully educated before you really get into the stocks. Now, did you check the financial health of the suggested companies? This is very important. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. And when you do not do this, जब आप नहीं करते हैं, what happens is कि आपकी investments नीचे भी जा सकती हैं. They can really incur great losses, right? अब इन्होंने कहा not really, but why should I do that when I paid the broker? So this guy is making investments through a broker and he is paying broker. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने brokers को पेमेंट करते हैं for these steps. But even after that, it's our duty that we should check where our broker is suggesting us to invest. Because after all, it's our money. That's what this guy says. But the investment was yours, not his. You should have checked that. अब इन भाई साहब को पता नहीं था, but I don't know how to check that. So that's very simple, and let us tell this guy कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की या फिर किसी भी कंपनी की, किसी भी शेयर की इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को आप कैसे चेक कर सकते हैं. लेट्स गो एंड सी दैट. तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स. And for these fundamentals, there are basically three very important statements of every company which you should really look into. ये जो तीन statements हैं, ये तीन statements आपकी help कर सकती हैं overall financial condition को समझने में किसी भी company की. What are these three important statements? ये जो तीन important statements हैं दोस्तों, these are income statement, which is also called as profit and loss statement. ये सबसे पहली statement है. Then we have balance sheet, और जो तीसरी statement है that is cash flow statement. ये तीन financial statements को अगर आप देखते हैं, if you study them, if you look at them and you analyze them properly, तो आप समझ सकते हैं that what is the overall financial condition of that particular company where you are going to invest your hard-earned money.
इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें. Even if you don't want to go deeper into these three statements, the very first statement, income statement, is very important to have a look at. और जनरली ये स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हर कंपनी जो है वो इशू करती है. हर क्वार्टर में कंपनी अपने रिजल्ट्स जो है वो मार्केट में फ्लोट करती है. And those who are real investors, they go deep into these statements, try to understand the fundamentals of the company, that how company is performing, किस डायरेक्शन में उस कंपनी की ग्रोथ जा रही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए दोस्तों इनकम स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स मूव अ स्टेप अहेड एंड सी what all is there inside these three different statements. सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की. इनकम स्टेटमेंट बताती है उस कंपनी की आमदनी के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, कितनी सेल उस कंपनी ने की है एक क्वार्टर के अंदर, 6 महीनों के अंदर, साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्टेटमेंट देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कंपनी की आमदनी कितनी है. It is going to tell you about the expenses. कंपनी कितना खर्चा करती है. How much expenses the company is really incurring over a particular quarter or in the whole financial year. ये आपको उसके बारे में भी बताती है. It also tells you about the gross profit. Gross profit के बारे में आपको ये आइडिया देती है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है. And it tells you about इनकम फ्रॉम कंपनीज ऑपरेशंस, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं. दोस्तों इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं एंड दीज टेक्निकल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर एक टेक्निकल टर्म को समझने की ज़रूरत है, बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया अबाउट दिस, दैट व्हाट इट मीन्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से, बिकॉज कंपनी कैन हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ले सकती है, कुछ और उसके इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं. ऑपरेशंस के थ्रू कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, सब कुछ मिला जुला के, सब कंसोलिडेट करने के बाद, सारे खर्चों को घटाकर, डेप्रिसिएशन को हटा करके क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है, दैट इज नेट प्रॉफिट. ज़रूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट ही हो, नेट लॉस भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लुकिंग इनटू द इनकम स्टेटमेंट और द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो ये तो बात होगी दोस्तों इनकम स्टेटमेंट की. अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की. बैलेंस शीट में दोस्तों बात आती है एसेट्स, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें कंपनी के एसेट्स के अंदर आती हैं. देन बैलेंस शीट हैज़ लाइबिलिटीज़, कंपनी के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना लोन कंपनी ने लिया हुआ है, एक्सपेंस कितने उसके देने वाले हैं. ऑल दीज विल कम अंडर लाइबिलिटीज़. And then the third important part of balance sheet is shareholders equity. जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्होंने कितना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, उनका कितना शेयर है कंपनी के अंदर. दिस इज शेयर होल्डर्स इक्विटी. और बैलेंस शीट की जो इक्वेशन है दैट इज ऑलवेज बैलेंसिंग, विच इज एसेट्स, जो जितनी भी कंपनी के एसेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज़, उसमें से अगर लाइबिलिटीज़ को घटा दिया जाए देन इट इज़ इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी. राइट. तो लास्ट जो है दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट. और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी के ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो हो रहा है, कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश फ्लो हो रहा है, एंड द नेट कैश फ्लो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इन तीनों में कितना नेट कैश फ्लो हो रहा है, दिस इज़ व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स टेल्स यू. तो दोस्तों अगर मैं इस तरह से बात करूं कि इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है या फिर उसको कितना घाटा हो रहा है, अगर आपको ये देखना है यू कैन स्ट्रेट अवे गो इनटू इनकम स्टेटमेंट. अगर आपको ये देखना है कि कंपनी का ओवरऑल एसेट लाइबिलिटी रेशो क्या है, यू कैन गो इनटू बैलेंस शीट. और अगर कैश का आपको स्टेटस देखना है यू हैव टू गो इनटू द cash flow statement. This is how you can look at these three different statements for financial health check of a particular company.
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे इनकम स्टेटमेंट के ऊपर. लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ मच बेटर वे. इसको थोड़ा सा हम लोग डीप डाइव कर लेते हैं एंड लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से कंपनी बनाती है, या हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर विद इन द इनकम स्टेटमेंट्स एंड हाउ दे आर प्लेस्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू या सेल्स. सबसे पहले बात आती है इनकम स्टेटमेंट की, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितनी सेल्स कर रही है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स. उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उस सेल्स को करने के लिए कंपनी को कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्च करना पड़ रहा है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर द कंपनी. रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, if you just subtract cost of goods sold from revenue, then it's going to give you gross profit. Gross profit आता है हमारा अगर हम cost को revenue से घटा दें तो हमारा gross profit निकल के आ जाता है. This is what कंपनी का कितना मुनाफा हुआ है. नेट अगर आपको समझना है, you can just have a look at the gross profit number. Now the next piece is indirect operating cost. इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है कंपनी की, व्हाट ऑल इट इंक्लूड्स. इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का कॉस्ट आ जाता है, कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है, मार्केटिंग वगैरह का खर्चा जो है वो हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं. एंड दिस इज ऑल इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि कंपनी को ऑपरेशंस चलाने में इनडायरेक्टली जो उसका खर्चा हो रहा है, दैट इज ऑल अंडर द इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट. इसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इसको घटा दें, व्हाट इट गिव्स यू इज ऑपरेटिंग इनकम, जिसे हम एबिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं. नाउ मूविंग ऑन, कॉस्ट ऑफ डेट और फाइनेंस. कंपनी ने कितना इंटरेस्ट दिया, कितने बैंक चार्जेस दिए, वो सारी कॉस्ट को अगर घटा दिया जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, दिस और टैक्स को अगर घटा दिया जाए, देन व्हाट वी विल गेट इज नेट इनकम या नेट प्रॉफिट. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लुक्स लाइक. इसमें दोस्तों रेवेन्यूज को टॉप लाइन भी कहा जाता है और नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी कहा जाता है. सो जब भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से स्टेटमेंट को देखते हैं, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल इन लुकिंग एट थ्री important elements. And what are these three important elements? Let's talk about that. उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इम्पॉर्टेंट कुछ रेशियोज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए when we are looking at income statement. What should you look at in the P&L? तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेशियो आती है which is called as gross margin. ग्रॉस मार्जिन आपको देखना चाहिए. व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं रेवेन्यू से, दिस गिव्स अस ग्रॉस मार्जिन. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो दोस्तों ये एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है, and in this income statement we can see we have income, and below income we have revenue from operations. This is gross revenue. And then we have less excise, service tax, other levies. We have revenue from operations. Net revenue भी हमारे पास है. We have total operating revenues as well. Other income के बाद हमने total revenue भी यहाँ पे निकाला है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं मार्च 2016 से मार्च 2020 अगर total revenue को देखा जाए तो total revenue यहाँ grow किया है. ये कंपनी का एक्सपेंसेस है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. एक्सपेंसेस में अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के फ्रॉम मार्च 2016 टू मार्च 2020 टोटल एक्सपेंसेस भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं. तो इस तरह से दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, किस तरह से उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं. एंड दिस कैन रियली हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड गिव अस अ फेयर आइडिया कि क्या कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन जो है या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो अच्छी है या नहीं है. सो हियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन क्लियरली सी दैट रेवेन्यू इज ग्रोइंग, एक्सपेंसेस आर ग्रोइंग टू, बट रेवेन्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं
एक्सपेंसेस उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े हैं जिस प्रोपोर्शन में रेवेन्यू बढ़ा है. व्हाट दैट मीन्स इज कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है. एंड इफ ऑल्सो वी लुक एट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स, प्रॉफिट अगर देखा जाए, कंपनी को मुनाफा जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 14,958 करोड़ टू 19,166 करोड़. तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कंपनी का बड़ा है. सो दिस इज अ कंपनी वेयर समवन वुड से दैट ओके दिस इज अ गुड शेयर टू इन्वेस्ट इन, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा ब्रीफ. इन दिस वीडियो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसको किस तरह से देखा जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स को हमें देखना चाहिए विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसमें हम ग्रॉस मार्जिन भी निकाल सकते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट को अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से तो हमें ग्रॉस मार्जिन मिल जाएगा. एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ग्रॉस मार्जिन किस तरह से कंपनी का बढ़ा है. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि P&L को किस तरह से देखना चाहिए, व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर देयर विद इन P&L एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो लोग भी ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में सीख पाएँ. वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू शेयर and to spread the word of wisdom. Thank you.